سماعت کرنے والی جماعت جماعتیت کی سنت پیش کرتا ہوں محبت کا سلام دیجیے، اس کا جواب پر تمام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ وحبیبہ وطبیبہ الکریم الغفار الستار، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رسول اللہ زندہ باد، اللہ اکبر، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اپنی قسمت پہ ناز کریں، اپنے مقدر کی معراج سمجھیں کہ اس وقت شہزادے علی اولاد غوث اعظم حضور سیدنا سرکار سید صوفی فضل علی قادری چشتی سجادہ نشین خانقاہ ابوالعالیہ گونڈہ شریف کی ذات مقدس آپ کے ماتھے کی نگاہوں کے سامنے جلوہ فروز جلوہ فگن ہونے والی ہے، لہٰذا آپ تھوڑی دیر اسی ادب و احترام، عقیدت اور محبت کے ساتھ کچھ دیر ذکر رسول سماعت کر کے اپنے ذہن و فکر کو پاکیزگی بخشنے کا انتظام کریں اور اپنے اعمال کو بہتر بنانے کے لیے علماء کے قریب، وہ علماء جس کے بارے میں میرے آقا مصطفیٰ جانی رحمت نے ارشاد فرمایا، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء میرے سچے جانشین ہیں۔ ایک طرف جانشین، ایک طرف خون، دونوں جب ایک مجمع میں، ایک اسٹیج پر، ایک ممبر پہ ہو، آپ دونوں ہاتھ سے دونوں فیض، دونوں برکتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ جانشین بھی حاضر ہیں، وارثین بھی حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت آج کی اس پاکیزہ بزم جس کو محترم حضرت حافظ و قاری شوکت علی صاحب قبلہ نے بڑے ہی عقیدت و محبت کے ساتھ اس محفل کا اہتمام انتظام کیا، علماء کو مدعو کیا، پھر طریقت کی آمد ہوئی، آپ تمام لوگوں کی حاضری ہوئی۔ مولا تعالیٰ اس بزم رسول کی برکت سے حافظ و قاری شوکت صاحب قبلہ کے گھر میں برکت نصیب فرمائے۔ خاص کر میں شکر گزار ہوں حضرت حافظ و قاری اعجاز احمد صدیقی صاحب قبلہ، پرنسپل و بانی جامعہ حنفیہ اظہر العلوم کے، جملہ اساتذہ اور دیگر علماء کا، حضرت حافظ و قاری حسب الدین صاحب قبلہ و دیگر علماء اہل سنت اس وقت ممبر شریف پہ تشریف فرما ہے۔ تھوڑی دیر آپ گفتگو سماعت کر لیں، اس کے بعد حضرت کا خطاب اور حضرت کی دعائیں ہوں گی، آپ محسوس کریں گے۔ سننے کے لیے تیار ہیں؟ کچھ سنیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے، کتنے لوگ نہیں سنیں گے؟ الحمدللہ سب لوگ سننے کے لیے تیار ہیں۔ میں سب کا شکر گزار ہوں، مشکور و ممنون ہوں۔ معمول کے مطابق ابھی آپ نے مجھ سے بیشتر ایک لاجواب خطیب، لاجواب خطاب، میری مراد حضرت علامہ مولانا نثار احمد صاحب قبلہ سربراہ اعلیٰ دارالعلوم نعیمیہ چھپرا سے آپ نے محسوس کیا، اپنے نیکیوں کی زنبیل کو باوزن کیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا تعالیٰ حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے، علم و عمل میں اضافہ فرمائے، حضرت کے سایہ کو دراز فرمائے۔ بس معمول کے مطابق دو شعر پڑھتا ہوں اور چیک کرتا ہوں کہ آپ کتنی دیر مجھے برداشت کریں گے۔ پڑھ دوں یا چھوڑ دوں؟ اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے نعت رسول کا دو شعر ذرا محبتوں کے ساتھ لہک کے بولے سبحان اللہ۔ یہ کون سا گاؤں ہے؟
मुबारकपुर में मुबारक हो। बहुत अच्छे मुबारक लोग बैठे हैं। गुलाम देखता हूँ तो हमारे हौसले में जान आ जाती है। हमको लगता है कि ऐसा भाई सबको मिले। किताबों से बस्तों से रिश्ता टूट जाता है। किताबें इतनी होती हैं कि बस्ता टूट जाता है। गज़ब की तंदुरुस्ती है मेरे गुलाम मुस्तफ़ा भाई की। जिस रिक्शे में बैठे वो रिक्शा टूट जाता है। अच्छी तंदुरुस्ती है, अल्लाह सलामत रखे। एजाज भाई, मौलाना गुलाम मंजूर साहब किबला और दीगर अहबाब बैठे हैं। हाफिज शौकत साहब, तमाम लोगों की दुआएं। इसमें ताहा मेरे हुजूर का है। इसमें ताहा इसमें ताहा मेरे हुजूर का है। लपे नगमा मेरे हुजूर का है। लपे नगमा मेरे हुजूर का है। लपे नगमा मेरे हुजूर का है। और चांद तारा से भी कहीं सुंदर से भी कहे सुंदर है। चांद तारों से भी कहे सुंदर है। अरे नूर तलवा मेरे हुजूर का है। नूर तलवा मेरे हुजूर का है। नूर तलवा मेरे हुजूर का है। जज़ाकल्लाह। कादरी नेटवर्क के बानी व मालिक मोहतरम जनाब हसीबुद्दीन साहब किबला ने मोहब्बतों के साथ 10 रुपए से नवाजा है। अल्लाह सलामत बाकरामत रखे। 10,000 नेकियां अता फरमाए। 10,000 बलाओं से महफूज मामून रखे। मोहब्बतों के साथ इसी तरह से मोहब्बतों के साथ शिरकतें और मोहब्बतें शामिल हो जाएं तो इंशाअल्लाह एक शेर पढ़ देता हूं। और इस घर के हवाले से हाफिज शौकत साहब ने बड़ी मेहनत की है तो इस घर का इंतजाम किया है। और उससे बड़ा इंतजाम ये हो गया है कि हुजूर सैयदना सरकार पीर तरीक़त रहबरे राह शरीयत सैयद सूफी फजले अली कादरी चिश्ती अलैहि रहमतुल्लाह मदज़िलहुल आली व नूरानी की आमद हो चुकी है। अब इस घर में बला आ जाए इतना आसान नहीं है। कोई मुसीबत आ जाए कोई आसान नहीं है। इसलिए एक शेर पढ़ना मुनासिब समझूंगा। शौकत भाई, अगर आपके दिल को छू जाए, दिमाग तक पहुंच जाए तो आप जहां कहीं हैं वहीं से बोलिएगा। लेकिन मजमा मेरे सामने है, मैं मजमे से खिताब करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि हर आदमी की शिरकतें हो जाएं और मोहब्बतों का सबूत मिल जाए तो मैं शेर पेश कर दूं। जरा पीछे वाले मोहल्ले से आवाज आ जाए, बोल दीजिए सुभान अल्लाह। आगे वाले टोले से आवाज आ जाए, बोल दीजिए सुभान अल्लाह। दोनों पंचायत और दोनों प्रखंड से आवाज आ जाए, बोल दीजिए सुभान अल्लाह। और फिर लगाइए ऐसे नहीं, एक हाथ नबी के नाम पे, दूसरा हाथ अली के नाम पे उठा के बोले या रसूल अल्लाह। इसलिए कि हाथ उठाना किसी दुनियादार की सुन्नत नहीं, मदीने के ताजदार की सुन्नत है। गदीर खुद के मौके पर मेरे आका ने हजरत अली का हाथ पकड़ा था, उठाकर फरमाया था मन कुन तो मौला फहाजा अली मौला। जिसका मैं मौला हूँ अली उसके मौला है। इसलिए ज़बान को पाक बनाओ अली अली कहके, मुनाफिकत को भगाओ अली अली कहके। जो चाहती हो माए कि नेक हो बच्चा तो उनको खाना खिलाओ अली अली कहके। इसलिए हर कोई जमाने का वली हो नहीं सकता और साहिबे और साफे चली हो नहीं सकता। मत डाल उन्हें अक्ल के मीजान पे जाहिर, जो अक्ल में आ जाए वो अली हो नहीं सकता। इसलिए हजरत एक हाथ नबी के नाम पे, दूसरा हाथ अली के नाम पे, दोनों हाथों को झंडा मदीने वाले का, डंडा बरेली वाले का, दोनों हाथों को लहरा के बोले या रसूल अल्लाह।
किसी का हाथ किसी के जेब में नहीं होना चाहिए। मोहब्बतों के साथ इन हाथों को उठा लीजिए, दुआ करने जाओ या अल्लाह परवरदिगार आलम 2023 में परवरदिगार आलम अगले साल इंशाअल्लाह ये हाथ मदीना शरीफ पहुंच जाए और रोज़े रसूल को छू जाए तो बरकतें हासिल हो जाए और मुकद्दर की मेराज हो जाए। मोहब्बतों के साथ दोनों हाथों को लहरा के बोलिए या रसूल अल्लाह। आए आए कैसे कोई बला घर में, आए कैसे कोई बला घर में, आए कैसे कोई बला घर में। एक जोरदार इस्तेमाल कीजिए, खड़े होकर इस्तेमाल कीजिए। औलाद गौसे आजम खूने जिगर हजरत फातिमा ज़हरा वो मुकद्दस ज़ात-ए गिरामी तशरीफ ला रही है कि जिसका ताल्लुक सरकार दो आलम के खून से है, जिसकी निस्बत हुजूर सैयदना सरकार दो आलम से है। इसलिए हज़रात इस्तेमाल कीजिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसले की आला हजरत औलाद गौसे आजम शहजादे हुजूर गौसे आजम शहजादे हुजूर सरकार गरीब नवाज फैजान हुजूर आला हजरत फैजान हुजूर मखदूम सिमना फैजान औलियाए किराम फैजान हुजूर नेमतुल उलमा सुभान अल्लाह जिंदाबाद। अब एकदम मुसलसल आप हजरात अपने चेहरों का मरकज बना लीजिए। हुजूर सैयदी सरकार मुर्शिदी मुरब्बी हजरत सैयद फजल अली कादरी चिश्ती मदरजुल आली व नूरानी को इनकी ज़ात-ए गिरामी मुहताज तारुफ नहीं, अल्लाह परवरदिगार आलम इनके साया को दराज फरमाए और इनके साये से अहले सुन्नत का बहुत बड़ा काम हो जाए। बस दुआ कीजिए, जरा मोहब्बतों के साथ शरीक हो जाइए और शरीक सफर होकर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। आए कैसे कोई भला घर में, आए कैसे कोई भला घर में, कि आए कैसे कोई भला घर में, आए कैसे कोई भला घर में, आए कैसे कोई भला घर में। अरे घर पे झंडा मेरे, घर पे झंडा मेरे हुजूर का है, घर पे झंडा मेरे हुजूर का है, घर पे झंडा मेरे हुजूर का है। हज़रात परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है मौला ताला इस घर के इफ्तिताह के इस प्रोग्राम को खूब कामयाब कामरान बनाए और घर में जितने अफराद रहने वाले हैं मौला ताला सबको सेहत और तंदुरुस्ती की दौलत अता फरमा और मौला हर बलाए बीमारी से मौला महफूज मामून रखना। घर में कोई गम न हो सिवाय गम हुसैन के। हज़रात और थोड़ी देर की गुफ्तगू सुन लीजिए। हज़रात मैं तो चतुर्वेदी की हैसियत से जाता हूँ, हिंदू सनातन शाश्वत धर्म के लोगों की किताब से पढ़ करके लोगों को समझाता और बताता हूँ कि हमारा इस्लाम क्या है, हिंदू सनातन शाश्वत धर्म क्या है और हमारे और उनके दरमियान क्या नफरत है, कहीं कोई नफरत नहीं है। ये बात ये पैगाम एकता घंटा की बात करता हूँ, प्यार प्रेम की बात करता हूँ, लेकिन आज सारी बातों को छोड़ करके हुजूर सैयदना सरकार पीर तरीकत की जलवागरी है और सैयद सूफी फजल अली कादरी चिश्ती मदरजुल आली व नूरानी की आमद हुई है। इसलिए हज़रात आले रसूल की बरकतें और आपको औलाद रसूल की बरकतें समझाना चाहता हूँ और समझाना चाहता हूँ ये औलाद सरकार गौसे आजम की औलाद है, इनके रगों में खून सरकार गौसे आजम का खून है, इनके रगों में खून इमाम हुसैन का खून दौड़ रहा है। इसलिए हज़रात इस शख्सियत को मामूली ना समझा और हज़रात ये पाक है, इनकी पाकीज़गी का ये आलम है कि हज़रात हज़रत खातून जन्नत फातिमा ज़हरा के बारे में लोगों में शोर हो गया, एक हंगामा हो गया, लोगों में एक बात चल गई और औरतों के दरमियान ये बात चलने लगी कि औरतों में सबसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ खातून कौन है, सबसे ज्यादा लाजवाब खातून कौन है। किसी ने कहा फातिमा, किसी ने कहा उम्मे कुलसूम, किसी ने कहा हज़रत खदीजतुल कुबरा, किसी ने कहा हज़रत मरियम, किसी ने किसी का नाम लिया, लेकिन सबसे ज्यादा जिसका नाम आया वो हज़रत खातून जन्नत फातिमा ज़हरा का हुआ। उस
उसके बाद सारे मदीने की औरतों ने मिलकर फैसला किया, ये फैसला हम न करेंगे, ये फैसला मदीने के दरबार में हो जाएगा तो अच्छा होगा। सारे मदीने की औरतों ने फैसला किया, चलो मदीने के ताजदार की बारगाह में पहुंच करके वहां ये सवाल रखते हैं कि आखिर दुनिया में सबसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ खातून कौन है, सबसे लाजवाब और सबसे तहरत पाकीज़गी की मालिका कौन है। ये सवाल लेकर के मदीने की औरतें पहुंची थी मदीने के दरबार में, मदीने के ताजदार के दरबार में। जब पहुंची है खातून, पहुंचने के बाद देखा कि मुस्तफा जाने रहमत अपने काशाने नबूवत में हाजिर मौजूद रहे हैं। तो नबी की बीवियों से पूछ लिया, कायनात की माओ से पूछ लिया, एक कायनात की माओ जरा तुम ही बताओ नबी की बेटी फातिमा ज़हरा की इज्जत पाकीज़गी का आलम क्या है। तो खातून जन्नत की माँ, पूरी दुनिया की माँ, पूरी दुनिया की माँ हजरत आयशा और उनके साथ में रहने वाली तमाम अज़वाज मुत्तहरात, नबी की बीवियां और तमाम कायनात की माएँ बोलने पर मजबूर हो गई और कहने लगी कि दुनिया में सबसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़, सबसे ज्यादा लाजवाब, सबसे ज्यादा तहरत पाकीज़गी की मालिका हजरत खातून जन्नत है, फातिमा ज़हरा है। मदीने की औरतों ने पूछ लिया कैसे, तो मदीने की औरतों के पूछने के सवाल का जवाब मदीने के ताजदार की बीवियां और हम तमाम लोगों की माँ हजरत फातिमा ज़हरा की माँ और हम तमाम मोमिनों की माँ यानी हजरत आयशा बोल पड़ी कि कुरान तुमने नहीं पढ़ा। कुरान में कहा इज़ा अरादा, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब इरादा किया कि मैं अपने घर को पाक करूं, अपने घर को साफ सुथरा करूं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया इज़ अहिदना इला इब्राहिम व इस्माइल अन तहिरा बैती लित्ताइफिना वल आकिफिना व रुक्कई सुजूद। ए इब्राहिम, हमने तुमसे वादा किया है कि तुम मेरा घर तवाफ के लिए, रुकू व सजदा करने के लिए पाक को साफ कर दो। मदीने की औरतों ने साफ साफ पूछना चाहा, ये बता दीजिए कि फातिमा ज़हरा कितनी पाकीज़ा है और किस कदर पाकीज़ा है। हजरत खातून जन्नत के बारे में जब सवाल हुआ तो हजरत खातून जन्नत की माँ यानी हजरत आयशा बोल पड़ी, फातिमा ज़हरा पाक है और इतना पाक है, इस कदर पाक है, कुरान से ज्यादा पाक है। फातिमा इतनी पाक है, इस कदर पाक है, काबे से ज्यादा पाक है। मदीने की औरतों ने दलील पूछ लिया कैसे, तो मदीने की ताजदार की बीवियों ने बोल दिया ऐसे कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने काबे को पाक करना चाहा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इब्राहिम और इस्माइल की ड्यूटी लगा दी। ए इब्राहिम और इस्माइल, तुम मेरा घर पाक करो। और जब आले मोहम्मद और मोहम्मद को पाक करने की बारी आई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिस्सा व अहलल बैत युतहिरुकुम तत्हीरा। ए मेरे परवरदिगार, तूने अपने महबूब को पाक करना चाहा है और आले मोहम्मद को पाक करना चाहा है, तो अल्लाह ताला फरमाता है मैं मोहम्मद को और आले मोहम्मद को पाक करना चाहता हूँ और इतना पाक करना चाहता हूँ, इतना पाक करना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया उसकी पाकी व पाकीज़गी को देख करके अश करने पर मजबूर हो जाए। तभी तो यूपी का वकार, दिल्ली का करार, बिहार की बहार, उड़ीसा का निखार, मुंबई की शान, कलकत्ता की जान, अहले सुन्नत की पहचान, बरेली का अहमद रजा खान पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डाल के कहते हैं या रसूल अल्लाह, तेरी औलाद पाक है, आदम से लेकर के ईसा तक जितने सादात हैं सब पाक है। गज के फातिमा ज़हरा से लेकर के इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम तक, आखिरी बेटा इमाम मेहदी तक, सारे बच्चे पाक है, सारी नस्लें पाक है और ऐसी पाकीज़गी के मालिक है कि बरेली के ताजदार फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, तेरी नस्लें पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का तू है, ऐने नूर तेरा सब नारे तकबीर, अल्लाह नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद, नारे तकबीर। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा नारा लगाया है हजरत हाफिज व कारी हसीबुद्दीन साहब किबला ने, लेकिन उस नारे का जवाब ऐसे दे रहे थे जैसे आप लोग तिहाड़ जेल से अभी छुट्टी हुई है, कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन मैं कुछ कहूंगा नहीं, आगे बढ़ता हूँ और हजरात इस सफर को दराज करता हूँ और आपको समझाना और बताना चाहता हूँ कि हजरात हुजूर सैयदना सरकार हजरत सैयद सूफी फजल अली कादरी चिश्ती मददुल्लाहुल अली वल नूरानी की ज़ात गिरामी है कि हजरात ये हुजूर सरकार गौसे आजम का फैजान है, ये सरकार गरीब नवाज के फैजान का नाम है और ये वो सरकार है कि जिसकी बारगाह में हुजूर आला हजरत ने कहा था ये वो शहजादे हैं, ये वो बेटे हैं जिनकी बारगाह में हम रब की बारगाह में जिनको लेकर के पहुंचेंगे और रब की बारगाह में फरियाद करेंगे ए मेरे परवरदिगार, हमने नमाज़ें पढ़ी है, रोजे भी रखे हैं, हज और ज़कात की भी दौलतें हैं, लेकिन तमाम चीजें एक तरफ, लेकिन जो सबसे ज्यादा मंजूर मकबूल है तेरी बारगाह में वो आले रसूल है। इसलिए कि ए मेरे परवरदिगार, ये नमाज मेरी कबूल हुई कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है, रोजे मकबूल हुए कि नहीं ये कोई मंजूरी की कोई दलील नहीं है, लेकिन वो तेरे बारगाह
مقبول منظور ہیں جو تیرے محبوب کی اولاد ہے. اس لیے بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کے شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. اس لیے حضرات ان اللہ والوں کے نیک بندوں سے, ان اللہ کے ولیوں سے ہم تمام لوگوں کو وابستہ ہونا چاہیے. ان کا رشتہ ہمارا رشتہ ان سے مربوط اور مضبوط ہو جانا چاہیے. اس لیے حضرات آپ جہاں کہیں بھی رہیں آل رسول کی محبت میں چور رہیں, ان سے عشق کریں, ان سے محبت کریں. ان سے محبت کرنے کا انعام یہ ملے گا اور یہ لطف ملے گا, یہ عقیدت کا انعام ملے گا کہ دروازے زہرا پہ کس کو مانگ کے دیکھا ہے, دروازے زہرا پہ کس کو مانگ کے دیکھا ہے, مانگنے سے پہلے وہ دیا ہوتا ہے. اور حضرات یہ وہ سادات کرام ہیں جن کے دربار میں انسان سائل بن کر کے جاتا ہے, سوالی بن کر کے جاتا ہے اور سوال پورا کر کے آتا ہے. حضرات یہ سخی ابن سخی ہے, یہ دینے پہ آئے تو کائنات کی جاگیر تھما دیتے ہیں, یہ دینے پہ آئے تو اتنا دیتے کہ آدمی سنبھال نہیں سکتا ہے. اس لیے حضرات ان کا قدم پڑ چکا ہے, اب گھر میں کوئی بیماری کوئی پریشانی کا دخول نہیں ہو سکتا ہے. یہ میرا عشق بولتا ہے. حضرات کہنا یہ چاہوں گا اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم ہے کہ ایسے سادات ہمیں ملے ہیں, ایسی اولاد ہمیں ملی ہے جن کے قدم کی برکتوں سے ہمارا گھر آنگن روشن ہے, گھر آنگن میں خوشیاں نصیب ہوتی ہیں. حضرات اللہ والے کے نیک بندے یہ نیک بندے ہیں, جہاں قدم رکھ دیتے ہیں وہاں خوشیوں کی بارش ہوتی ہے, جہاں قدم رنجا ہو جاتے ہیں وہاں انسان کئی دنوں تک اس کی مہک اور اس کی خوشبوئیں محسوس کرتا ہے. حضرات یہ اللہ کے نیک محبوب بندے ہیں. حضرات یہ وہ اولاد ہیں جس کے بارے میں ہندو سناتن شاشوت دھرم کی کتابوں میں آیا ہے ادھیشام بھوشینتی منانسی وشتانی وے واسو دیوانگ راگاتی پن گند نیل اسپیشام. بھاگوت پران اسکند 10 ادھیائے نمبر 2 شلوک نمبر 21-22 اس میں لکھا ہوا ہے کہ فرمایا گیا کہ جسم سے خوشبو نکلے گی. شریمد بھاگوت پران کے انوسار یعنی نبی جو ہوگا اس کے شریر سے خوشبو نکلے گی, اس کے جسم سے خوشبو نکلے گی, اس کے پسینے سے خوشبو نکلے گی اور اس کی جو اولاد ہوگی وہ بھی خوشبودار ہوگی. حضرات اس لیے تاریخ بتاتی ہے اور حدیث کے الفاظ بتاتے ہیں کہ حضرت ام سلیم میرے نبی کی پیاری صحابیہ ہے, نبی کی پیاری محترمہ صحابیہ جب نبی کی بارگاہ میں پہنچی ہیں اور مصطفیٰ جان رحمت کے نکلے ہوئے پسینے کو اپنی شیشی میں جمع کر رہی ہیں, اکٹھا کر رہی ہیں قطرے نبوت کو اور قطرے پسینے نبوت کو اور قطرے پسینے نبوت کو جب جمع کرنے لگی ہیں تو میرے آقا نے مسکرا کر ارشاد فرمایا اے ام سلیم یہ کیا کر رہی ہو. حضرت ام سلیم عرض کرتی ہے حضور یہ آپ کے جسم اقدس کا نکلا ہوا پسینہ ہے, میرے گھر میں میری بیٹی کی شادی ہونے والی ہے, جب اس کے گھر اس کا ڈھولا سجایا جائے گا, اس کو جوڑا پہنایا جائے گا, جب اس کے جوڑوں میں عطر کا استعمال کیا جائے گا. دنیا کی مائیں عطر لگایا کرتی ہیں, پرفیوم لگایا کرتی ہیں, خوشبوئیں استعمال کرتی ہیں, لیکن اے میرے آقا جب میرے گھر آنگن میں ڈھولا سجایا جائے گا, میرے گھر میں بارات آئیں گے, باراتی لوگ آئیں گے, میرے گھر میں بارات آئے گی تو اس میں عطر نہیں میں آپ کے جسم اقدس کا نکلا ہوا پسینہ لگاؤں گے. اور حضرات تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت ام سلیم کا گھر آنگن خوشبو سے معطر ہو گیا تھا, یہاں تک کہ ان کے گھر میں جو بیٹی کی شادی ہو رہی تھی پورے باراتی خوشبودار ہو گئے تھے, 7 نسلوں تک وہ خوشبو چلتی رہی. اس قدر معطر اور اس قدر عطر بیزیاں ہونے لگی تھی کہ جدھر سے وہ ان کا گزر ہوتا تھا راستے مہک اٹھتے تھے اور بریلی کے تاجدار ترجمانی کرنے لگے تھے واللہ جو مل جائے میرے دل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. حضرات وہ میری آقا ہے, مصطفیٰ جان رحمت ہے جن کے جسم اقدس سے پسینہ نکلتا ہے, خوشبوئیں دیتا ہے. اس لیے حضرات ہندو بھائیوں کی کتابوں میں آیا ہے. اس لیے حضرات تھوڑی دیر کی بیداری اور آپ کی شرکتیں چاہیے. میں آپ کو سمجھانا اور بتانا چاہتا ہوں یہ حضرت حافظ القاری شوکت صاحب قبلہ ہے, بڑی محنت کی ہے تو اتنا بڑا گھر بنایا ہے, گھر کا انتظام کیا ہے. اللہ رب العزت اس گھر کو شاد و آباد رکھے. اور بتانا یہ چاہتا ہوں آج ہم جس سماج میں سانسیں لے رہے ہیں, جس سماج میں ہم جی رہے ہیں, جس سماج میں جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں اور سانسیں لے رہے ہیں, ہمارا سماج ہمارا معاشرہ اس قدر گھٹیا سوچ کا مالک ہو گیا ہے. ہمارا معاشرہ اور ہمارا سمودائے خاص کر کے ہماری کمیونٹی ہمارا سمودائے اس کگار پہ پہنچ چکا ہے کہ جب کسی کا گھر بنتا ہو تو لوگ ارچن لگاتے ہیں, لوگ کہتے ہیں یہ اتنا پیسہ لایا کیسے, حافظ صاحب 5 سال 5,000 کی نوکری کرتے ہیں, اتنا پیسہ لایا کیسے, لگتا ہے کہیں چندہ کیا ہوگا, لگتا ہے کہیں دھندا کیا ہوگا, لگتا ہے کسی مسجد مدرسے کا حق مارا
होगा, लगता है कहीं कोई पैसा दबाया होगा, उसके बाद ये घर बना होगा, उसके बाद घर में ईंट का इंतजाम, लोहे और गाढ़े सीमेंट का इंतजाम हुआ होगा। लेकिन हजरात कहना ही चाहूंगा बड़ी मेहनत की है तब जाकर के ये घर बना होगा। आज अगर 2 रोटी खाया है तो कुछ रुपए पैसे बचाए हैं तो ये घर बना है। हजरात इसलिए कहना ही चाहूंगा जिस समाज में हम सांस ले रहे हैं ना, उस समाज का ये मिजाज बन चुका है, उस समाज का ये नजरिया बन चुका है कि किसी का घर बने तो घर बाद में बनेगा, पहले ये पूछा जाएगा कि तूने जमीन की नापी करवाई है कि नहीं, जमीन तूने मेरे बगल में तेरी जमीन है, कहीं 2-4 धूर 2-4 उंगली जमीन तूने नाजायज कब्जा तो नहीं कर लिया है, 2-4 उंगली जमीन मेरी तरफ निकल जाए तो फिर मैं तेरा घर तोड़वा दूंगा, मैं तेरा पीर तोड़वा दूंगा, मैं तेरा घर तबाह बर्बाद कर दूंगा। हजरात ये कहने के लिए मजबूर हो जाता है। उसके बाद घर बनाने वाला नापी करवाता है, नापी करने के बाद अपना घर बनाता है, उसके बाद भी उसके पेट का दर्द खत्म नहीं होता है। वो चाहता है किसी तरह से इसके घर का काम रुक जाए, वो चाहता है किसी तरह से उसके घर का काम में फाउंडेशन हो जाए और किसी तरह से रोकबंदी हो जाए। उसके बाद वो चाहता है कि हजरात अड़ोस पड़ोस को वर्गलाता है, अड़ोस पड़ोस को वो वर्गला करके कहता है देखो ना अभी तक तो ये झोपड़ी में रहता था, पता नहीं कहां से इतना पैसा लेके आ गया। हजरात इसलिए कहते हैं कि जनाब जब आप किसी के लिए दुआ करते हैं तो सबसे पहले आप मेरे मुस्तफा जाने रहमत का इरशाद समाप्त कर लीजिए। मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत दो आलम पूरी दुनिया को ये दर्स हयात और दर्स इबरत दे रहे हैं और दुनिया वालों को बता रहे हैं कि लोगों वला तरारा वला तिरारा, ना तुम किसी को नुकसान पहुंचाओ और ना तुमको कोई नुकसान पहुंचाएगा। ये मेरे मुस्तफा का जब मैंने फरमान पढ़ा तो मेरा जहन खुल गया, मेरा दिमाग खुल गया, मेरा ब्रेन काम करने लगा और मैं सोचने पर मजबूर हो गया। एक छोटा सा पैगाम मुस्तफा जाने रहमत का और इतना बड़ा पैगाम दे दिया कि इसको जहां जहां फिट करो मुस्तफा जाने रहमत का पैगाम वहां फिट होता हुआ नजर आता है। वला तिरारा वला तिरारा वला तरारा वला तिरारा, न किसी को नुकसान पहुंचाओ न तुमको कोई नुकसान पहुंचाएगा, न नुकसान पहुंचाने का इंतजाम करो न तुमको कोई नुकसान और ठोकर देगा। इसलिए हजरात में मुस्तफा जाने रहमत के फरमान के मुताबिक न तुम किसी को गाली दो न दूसरा तुमको कोई गाली देगा, न तुम किसी को भूखा रखो न तो कोई तुमको दूसरा भूखा रखेगा, न किसी को तुम टॉर्चर करो न दूसरा कोई तुमको टॉर्चर करेगा, न तुम किसी को सताओ न दूसरा कोई तुमको सताएगा, न तुम किसी का हक मारो दूसरा कोई तुम्हारा हक नहीं मारेगा, न तुम किसी माँ बाप का हक तुम हक अदा करोगे, माँ बाप तुम्हारा हक अदा करेगा। यानी मुस्तफा जाने रहमत का पैगाम इतना वसी है, इतना लाजवाब है कि मुस्तफा जाने रहमत का ये पैगाम दुनिया के हर शोबे में, जिंदगी के हर शोबे में और मुआशरती जिंदगी के हर शोबे में ये फिट हो सकता है। इसलिए ये पैगाम मुस्तफा जाने रहमत का पैगाम है। और मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया जब तुम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओगे ना तो तुम्हारा भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यही वजह है कि सीधे साधे लोग जो भोले भाले लोग होते हैं, जो अच्छे लोग हुआ करते हैं, उसके लिए ये जिंदगी की बहारें नसीब होती है। और कबीरदास जी कहते हैं कि आदमी इंसान जब तक इस दुनिया में रहा तो अपनी जबान को बदल ले, अपनी जबान में इतनी शीरनी, इतनी चाशनी, इतनी मिठास लेके आ जा कि दूसरा कोई सुने, तुम्हारा दुश्मन भी तुम्हारी वाणी सुन करके, दुश्मन भी तेरी बातों को सुन करके, तेरे बातों को श्रवण करे तो तुम्हारा अपना हो जाए और वो अपना होकर के कहे कि ये मेरा अपना है। और कबीरदास जी कहते हैं कि लफ्जों में ऐसी मिठास होनी चाहिए। इसलिए मेरे आका ने इरशाद फरमाया इन्ना खियारकुम अहसनुकुम अखलाकन, तुम में सबसे अच्छा इंसान वो है जो सबसे अच्छे अखलाक का मालिक है। द बेस्ट अमंग यू आर द बेस्ट इन कैरेक्टर मिनिमली हैविंग गुड मैनर्स, यानी तुम में सबसे अच्छा इंसान वो है जो सबसे अच्छे अखलाक का मालिक है। ये औलियाद गौसे आजम है, ये सादत किराम है, खुद भूखे रहे हैं लेकिन दूसरों को खाना खिलाया है, खुद भूखे रहे हैं दूसरों को खाना खिलाया है, दूसरों को कपड़ा पहनाया है, दूसरों की जरूरतें पूरी की है। आजाद मदीने की जमीन है, 10 साली का जमाना है, किसी भूखे इंसान का उस रास्ते से गुजर हुआ है। देखा है कि एक बूढ़ा इंसान कंबल ओढ़ करके अपने कटोरे में रोटी का टुकड़ा डालता है और उसमें पानी में भिगो के रोटी को उठाता है और खाता है। जब उस भूखे इंसान का उस रास्ते से गुजर हुआ है तो देखता है कि कोई भूखा है, कंबल ओढ़ करके रोटी का टुकड़ा खा रहा है। भूखा इंसान, भूख की शिद्दत सता रही थी, प्यास की शिद्दत ने बिलबिला करके रख दिया था। वो इंसान पहुंचता है और कहता है हुजूर हमें माफ कर दीजिए, मैं भूखा हूँ, सवाली बन करके आया हूँ, एक रोटी का टुकड़ा
टुकड़ा मिल जाए तो शायद मेरी जिंदगी बच जाए। ए मेरे हुजूर, मुझे रोटी का एक टुकड़ा दे दीजिए। वो बूढ़ा इंसान जो कंबल ओढ़ करके रोटी भिगो भिगो करके खा रहा था, उसने कहा अगर यही खाना है तो यही बैठ जा, इससे अच्छा खाना तुझे लेना है और खाना है तो बगल वाले घर में दस्तक दे दे, तुझे इससे अच्छा खाना मिल जाएगा। ये सोच करके सोचा कि अभी भूखा ही हो, अच्छा खाना मिल जाए तो इससे बेहतर बात क्या होगी। वो इंसान गया, बगल वाले घर में दस्तक दिया, दरवाजा खटखटाया, दो नन्हे शहजादे की बरामद हुई और दोनों शहजादे ने ये खैरियत मालूम की। सलाम कलाम के बाद जब खैरियत मालूम की तो पता चला ये इंसान मुसाफिर है, ये इंसान कहीं से आया है, भूख बता रही है कि चेहरा गमज़दा है और होठ बता रहे कि इंसान प्यासा है, यानी सरापा वजूद बता रहा है कि इंसान बेकसी और बेबसी के आलम में है। उसने हिलती और मुस्कुराते, उसने बड़ी मजबूरी के साथ अर्ज किया, हुजूर मैं आपके दरवाजे पे सवाल तो नहीं करना चाहता था, लेकिन भूख की मजबूरी ने मुझे सवाल करने पर मजबूर कर दिया है। अगर आप मेरी मदद कर रहे हैं तो मुझसे बेहतर आपका कोई वफादार साथी नहीं मिलेगा, इसलिए आप ये काम करें कि आज मैं भूखा हूँ, बहुत ज्यादा प्यास की शिद्दत है, मुझे 2 वक्त की रोटी तो नहीं, सिर्फ एक में वाला रोटी दे दीजिए, एक खाना दे दीजिए जिससे मेरी जिंदगी बच जाए। इतना सुनना था, दोनों शहजादे अंदर गए, खाना लेके आए, दस्तरखान रखा, उसके बाद खाना खिलाया। जब शिकम शेर हो गया वो मुसाफिर, जब पूरी तरह से पेट भर गया, उसके बाद कहा कि हुजूर जाना चाहता हूँ, इजाजत दीजिए। कहा कि ठीक है जाइए, लेकिन हजरात जाने से पहले उसने कहा तेरा शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि तूने मुझे भरपेट खाना खिलाया है, इतना खाना खिला दिया है कि अब लगता है कि 2-4 दिन भी खाना नहीं खाऊंगा तो भूख नहीं सताएगी। उसके बाद ये कह करके जाना चाहता था, तब तक उसके मन में ख्याल आया कि जो इंसान रोटी भिगो करके खा रहा था, कम से कम उसके लिए एक खाना मांग लो ताकि उसको भी अच्छा खाना मिल जाए। ये सोच करके उसने कहा कि हुजूर अगर एक खाना और मिल जाए तो इससे बेहतर बात नहीं होगी। कहा कि वो किसके लिए? कहा बगल में वो इंसान है जो कम्बल ओढ़ करके रोटी का टुकड़ा पानी में डुबो करके खा रहा है, उसके लिए चाहता हूँ कि एक खाना ले जा करके उनको भी खिला दो। कहा कि वो तुम नहीं जानते हो, जिसको तुम वो बूढ़ा इंसान कह रहे हो, जिसको नहीं तो नातवा इंसान कह रहे हो, जो बूढ़ा कंबल ओढ़ करके रोटी का टुकड़ा खा रहा है ना, वो कोई और नहीं, इसी घर का मालिक वो हजरत सैयदना अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। हमारे बाप हैं, हमारे अब्बा हैं, वो हमारे अब्बा हैं जिनके घर पे आप मेहमान बनकर के आए हैं। हजरात ये वो खानदान है जो खुद भूखे रहते हैं, दूसरों को खाना खिला दिया करते हैं। और ये सहावत मेरे मुस्तफा जाने रहमत के दौर से चली आ रही है और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक ये दौर चलता रहेगा, ये फैज बढ़ता रहेगा, ये फैजान तक़सीम होता रहेगा। इसलिए बैत या सर यही था तकाजा यजीद का, बैत या सर यही था तकाजा यजीद का। महरूम तो कोई भी सवाल ही नहीं गया। सर दे दिया हुसैन ने बैत न की मगर, सर दे दिया हुसैन ने बैत न की मगर, अमा इस दर से तो यजीद भी खाली नहीं गया, अमा इस दर से यजीद भी तो खाली नहीं गया। हजरात कहना ये चाहूंगा, आइए मैं आपको बताना चाहता हूँ, बड़े बड़े हिंदू सनातन शास्त्र धर्म के